हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमिट एजुकेशन। आज हम बात करने वाले एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये हमारे पास में सभी फिजिकल एजुकेशन एग्जाम्स के लिए और जितने भी कमिंग एग्जामिनेशन है फॉर ग्रेड 11, 12, KVS, NVS, UGC सबके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो टॉपिक इज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी एंड दिस इज पार्ट नंबर 1 वीडियो। इन दिस वी learn about the anatomy, physiology and the importance in physical education. So the first topic is anatomy. So the word anatomy is derived from the Greek word which ana means to cut. So basically study of anatomy have traditionally depended on the cutting up or dissection. So basically suppose this is a human body के अंदर कौन से चीज़ें रहेंगी, so इसको हम कैसे पता करेंगे? अपनी बॉडी को कट करके, so means dissection करके. But nowadays dissection करने की नीड नहीं है because we have the lots of technology, so we can directly see our body from the inside. So the study of the human body, this is the known as the anatomy. Next definition are anatomy, the study of structure of the human body. ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करना क्या होगा? एनाटॉमी. जस्ट लाइक दैट कि एक पर्टिकुलर ह्यूमन बॉडी के अंदर स्कल या हार्ट है तो हार्ट का शेप साइज क्या होगा, उसका वेट क्या होगा, जब उसके बारे में हम स्टडी करेंगे दिस पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज दी एनाटॉमी. तो किसी भी बॉडी के शेप के साइज के वेट के बारे में हम जब स्टडी करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? एनाटॉमी. एनाटॉमी इज द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the bodily structure of human, animal and other living organism. So this topic is related to the physical education. So in the physical education mainly we talk about only for the human. So revealed by dissection and the separation of the part. So the particular anatomy is divided into how many part? In the two part, gross anatomy and the microscopic anatomy. The gross anatomy means जिसको हम directly अपनी आई से हम क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं. सो दिस इज नोन एज द ग्रास एनाटोमी. सेकेंड वन इज माइक्रोस्कोपिक. सो माइक्रोस्कोपिक मीन्स जिसको देखने के लिए वी रिक्वायर द माइक्रोस्कोप. तो फॉर द माइन्यूट जो हमारी जो छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसको हम डायरेक्टली विद द नेक्ड आइज वी कैन नॉट सी, सो दैट थिंग we see with the help of the microscope. This is known as the microscopic anatomy. Like the including cells, tissues is known as the cytology, tissue histology. Next part, that is physiology. So physiology is the part of anatomy. In anatomy we study about the shape, size, structure, and in physiology we study about the function कि how it's work. So in physiology we get the answer of how की चीज़ें कैसे होती हैं, किस तरह से काम करेंगे. जस्ट लाइक दैट कि हार्ट. सो हार्ट हमारा किस तरह से फंक्शन करता है, उसके रोल्स क्या क्या होंगे, जो हम उसके बारे में स्टडी करेंगे. सो दिस इज नोन एज द फिजियोलॉजी. सो फिजियोलॉजी derived from the ancient Greek physis which means nature and logia means study. So the scientific study of the function and the mechanism which work with the living system. So basically physiology means the study about the functions of any organ. Physiology. So physiology study function of organ और the organ system. organ के बारे में, organ systems के बारे में study करना ही क्या होगा? Physiology. Physiology is the study of all the physical and the chemical process that take place in organism in order for them to perform all the function activities associated with the living. This is also the definition of the physiology. Example, you eat pizza and how energy is created from that pizza. This is process known as the physiology. कि वो चीज़ें काम कैसे किया, कि आपने पिज़्ज़ा खाया, पिज़्ज़ा एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? फिजियोलॉजी. इस प्रोसेस को स्टडी करना ही क्या होगा? फिजियोलॉजी. लाइक दैट इन आर ह्यूमन बॉडी दे आर द डिफरेंट एंड सो मेनी टाइप ऑफ सिस्टम्स आर देयर लाइक डाइजेस्टिव, मस्कुलर, lymphatic, endocrine, nervous, female reproductive, male reproductive, respiratory system, urinary system, circulatory system. So many systems are there. So in all these systems को study करना, इनके functions के बारे में study करना is known as the physiology. So mainly these are the some major system that are part of the physiology like cardiovascular system, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं
कि ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स थ्रू हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स के थ्रू, लाइक कार्डियोवास्कुलर इज एसोसिएटेड विद द हार्ट। सो हार्ट से रिलेटेड क्या होगा, वेसल्स, ब्लड वेसल्स। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, जहाँ पे हम स्टडी करते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लाइक हाउ लाइक CO2 और O2 के बारे में किस तरह से वो गैसेस वहाँ पे चेंज होते हैं, इंटरचेंज होंगे। मस्कुलर सिस्टम, बेसिकली स्ट्रेंथ जो हम बात करेंगे, सो दैट इज फ्रॉम द मस्कुलर। नेक्स्ट वन इज नर्वस सिस्टम, कोऑर्डिनेट मूवमेंट एंड द बॉडी रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। एंडोक्राइन, जो आपके मेन हॉर्मोन्स को रेगुलेट करना। मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग एक्सरसाइजेज, उनकी स्टडी किस में आएगा, एंडोक्राइन के अंदर। डाइजेस्टिव रिलेटेड टू दी फूड, जो बेसिकली हम कोई भी फूड हम ईट करेंगे और उसको जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से जो रहेगा, केमिकल प्रोसेस से हम जो खाना खाएंगे वो एनर्जी किस तरह से कन्वर्ट करेगा, एंड व्हाट द रोल ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज। नाउ फर्स्ट वी लर्न anatomy, then physiology. Now next time is exercise physiology, means this is relevant to our physical education. When we doing any activity, so what the impact? So always when we do any kind of activity, any vigorous activity, aerobic, anaerobic, so they show some impact. So exercise physiology is study of the human body response to physical activity and how it adapt over time. किसी भी एक्टिविटी के रिस्पॉन्स को जो हम करेंगे उसकी स्टडी करेंगे कि पर्टिकुलर एक्सरसाइज का हमारी बॉडी पे क्या इम्पैक्ट हुआ। दिस इज नोन एज एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। सो ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस कंसर्न विद द वे दैट बॉडी रिस्पॉन्ड टू एक्सरसाइज एंड द ट्रेनिंग, की हमारी बॉडी, पर्टिकुलर ह्यूमन की बॉडी एक्सरसाइज को किस तरह से रिस्पॉन्ड करती है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग। सो इट प्लेज की रोल इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस एंड एथलेटिक ट्रेनिंग by providing insight into performance improvement, injury prevention and the recovery. So exercise physiology is very huge branch in particular physical education, and by the help of exercise physiology हम अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं, इंजरी से हम बच सकते हैं, एंड हम अपने रिकवरी को क्या कर सकते हैं, वहाँ पे फास्ट कर सकते हैं। सो दैट विल हेल्प्स टू इम्प्रूव आवर परफॉर्मेंस। इट प्लेज ए की रोल इन फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स साइंस, athletic training. Exercise physiology key concept. So homeostasis, what the meaning of that, कि इसके अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, बैलेंस। सो इट द मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट द नॉर्मल इंटरनल इन्वायरमेंट डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। द नर्वस सिस्टम, द हार्मोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। बेसिकली जब हम बैलेंस बनाएंगे हमारी बॉडी के अंदर, बाहर के सिस्टम से अंदर के सिस्टम से जो हार्मोन्स रेगुलेट करेंगे, दिस वन इज नोन एज द होम्योस्टेटिस। सेकेंड वन इज एक्यूट एडेप्टेशन। व्हाट इज दैट? इमीडिएट चेंजिंग ड्यूरिंग एक्सरसाइज, लाइक इंक्रीज हार्ट रेट, कि हम कितना जल्दी अडेप्ट करेंगे। क्रोनिक एडेप्टेशन, लॉन्ग टर्म चेंजेस फ्रॉम रेगुलर एक्सरसाइज। मसल हाइपरट्रॉफी, किसी भी एक्टिविटी को लॉन्गर टाइम तक करना, नॉन एज दी हाइपरट्रॉफी। जस्ट लाइक दैट कि सपोज आपने आज एक्सरसाइज स्टार्ट किया, आफ्टर 6 मंथ इफ़ यू सी योर एनी पर्सन, तो उसकी बॉडी में जो मसल्स होंगे ग्रो अप होंगे, दैट इज नोन एज दी हाइपरट्रॉफी। नेक्स्ट वन इज एरोबिक versus anaerobic. So in the presence of oxygen, aerobic; absence of anaerobic. So these are the some terms that we use. Metabolism means the sum of all chemical reaction that occur in the body. Anabolism, product is formed addition of two compound like A plus B, so that is we get the C, means anabolism. Cation or catabolism, breakdown of the compound, cut. Steady state, the balance between the demand placed on the body and the body response to those demand, like body temperature, blood pressure. This is some example of the that. Bioenergetics, so it is a flow and the exchange of energy within a living system where there is a conversion of foodstuff, protein, carb and the fat. So the flow and the exchange of energy within a living system, कि हमारे बॉडी के अंदर क्या क्या एनर्जी या एनर्जी एक्सचेंज किस तरह से होगी।
नाउ नेक्स्ट वन, स्कोप ऑफ एक्सरसाइज। सो कौन से स्कोप्स आपको यहाँ पे फिजियोलॉजी के अंदर, एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में देखने को मिलेंगे, कहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। सो फर्स्ट, इन दी हेल्थ एंड द रिहैब। सो अप्लाइड इन थेरेपी एंड इंजरी रिकवरी, की कोई भी पर्सन को अगर इंजरी हुई तो हम उसको किस तरह से जल्दी जल्दी रिकवर कर सकेंगे। सो थेरेपीज में हम यहाँ पे हेल्प ले सकते हैं। सेकेंड वन इज रिसर्च। सो इन्वेस्टिगेट ह्यूमन परफॉर्मेंस एंड फिटनेस इंप्रूवमेंट, हम किसी पर्टिकुलर पर्सन के इंप्रूवमेंट या परफॉर्मेंस को किस तरह से इंक्रीज या इन्हेंस कर सकेंगे। सो इन द रिसर्च वर्क इज ऑल्सो द पार्ट। स्पोर्ट्स साइंस, enhance athletic performance through the training program. In different training program we use exercise physiology. Importance of exercise physiology in physical education. So there are the n number of importance of exercise, in particular in our branch, in physical education branch. For example, provide evidence, help educator, training individual student need capabilities, ensure injury prevention एंड ऑप्टिमल परफॉर्मेंस इन द फिजिकल एक्टिविटीज़, की हम इन चीज़ों में किस तरह से चीज़ों को इन्हेंस कर सकते हैं। ट्रेनिंग टीचर्स के लिए हेल्प कर सकता है कि किस तरह से हम आगे नए नए टॉपिक्स, नए नए चीज़ों के बारे में रिसर्च वर्क के अंदर हम चीज़ों को सीख सकते हैं, और आगे जो हमारे पास स्टूडेंट्स रहेंगे, एथलीट्स रहेंगे, उनको हम इंफॉर्मेशन या नॉलेज उनको गेन या प्रोवाइड कर सकें। वाई वी स्टडी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी? There is some reason why we require this. So it helps improve overall health and fitness outcome. Is a critical for physical educator, trainer and the coaches to understand body response exercise, कि हम देख सकते हैं कि हमारी जो फिजिकल है, हमारी जो बॉडी है, वो एक्सरसाइज को किस तरह से कितना रिस्पॉन्ड कर रही है। प्रमोट साइंटिफिक अप्रोच टू ट्रेनिंग, रिकवरी एंड दी रिहैब। सो अगर हमारे पास में हम प्रॉपर रिकवर करेंगे, रिहैब करेंगे, सो इसका इम्पैक्ट कहाँ पे होगा? ट्रेनिंग पे। और ट्रेनिंग का मीन्स कि हमारे पास जो हमारा जो मेन इवेंट होता है, जो हमारा मेन गोल, मेन एम होगा, वहाँ पे हम अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सो डायरेक्टली इट विल इन्फ्लुएंस और इन्हेंस आवर मेन परफॉर्मेंस, जहाँ पे हमें क्या करना होगा? परफॉर्म करना होगा। सो दिस इज द रीजन वी स्टडी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी. So I hope so you like this video. So have a nice day. If you like this video, please share with your friends, with your colleague, and keep motivating us.